आज हम बात करने वाले हैं why why most people stuck in there. They have everything, all the talents that is required, but still they find themselves stuck somewhere. So आज हम उसी के रिगार्डिंग we'll have a discussion, and the discussion will be bilingual. So हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे because there are some people who are not comfortable in one of the language. ठीक है. So now let me share my screen and let me know if my screen is visible to you. Okay. Just type it in the chat if it is visible to you. Good, Parvati. Thank you. Thank you, Mukul. Fantastic. चलिए, so hello everyone and welcome to this, and I'm really glad that you are here today. संडे की शाम को बहुत सारे प्लान्स लोगों के होते हैं, and उन प्लान्स के बीच में you guys have prioritized to learn, you guys have prioritized, to work on yourself, and that is a big win in itself, right? And I can see इंडिया के बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं. So I wanted to know first of all कि अगर मैं बात करूँ so on a scale of 1 to 10, how focused and consistent do you feel right now in your life? Just type it in the chat. कितना फोकस और कंसिस्टेंट आप अभी अपनी लाइफ में फील करते हैं, अगर 10 being the highest and 1 being the lowest, right? Nishan says 7, Mukul says 6, Rupa says 5, and others. Parvati says 6, Smithpuri says 7, and again 5. So, it's pretty interesting that, most people are somewhere between 4 to 7, right? And, which is exactly why this session is important, right? Why we are not at 8, why we are not at 9, 9.5 in our life? Why we are stuck in that mid zone of 4 to 7? Okay. So before we proceed further, I wanted to set the expectations right, right? And before we talk about focus, let us experience it a bit. Okay. Because most people don't have a knowledge problem. आज हम एक AI age में रहते हैं. And in this AI era, knowledge is something which is available every now and then. इतना ज्यादा नॉलेज है कि एक तरीके से बात करें तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, राइट? प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है बिकॉज वी हैव अ मेंटल नॉइज प्रॉब्लम. नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल नॉइज का प्रॉब्लम. Okay. There are few people which are joining late, so welcome you all as well. Welcome Frankie and welcome Krish. Okay, so now we are going to, as I told you, that we are going to experience it. How, what a focused mind look like. हम सबके पास वो है, हम सबने देखा है, हम सबने अपनी लाइफ में ना ऑब्जर्व किया है वो मोमेंट जब हम एक फोकस में थे, हम एक डीप फोकस में काम कर रहे थे. वी वर वर्किंग विद आवर फुल पोटेंशियल. सबके लाइफ में वो एक टाइम आता है, बट वी आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट स्टेट. ओके, सो टुडे लेट अस जस्ट एक्सपीरियंस इट फर्स्ट. So what I want from everybody of you, I want you to close your eyes for a bit. We are going to do a short meditation. Okay? So sit comfortably, put your hands on your thighs, and simply close your eyes. Inhale deeply from your nostrils and exhale slowly from your mouth. जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, I just want all of you guys to sit comfortably and now close your eyes. We are going to enter into a beautiful meditation. एक गहरी सांस लें. Inhale deeply from your nostrils and exhale slowly from your mouth. Very good. And with every breath, just allow your body to relax. Just observe the way that you are breathing. देखिए कैसे एक कोल्ड एयर आपके नॉस्ट्रल्स में एंटर करती है एंड कैसे a warm air leave your nostrils. Just observe this beautiful process of breathing. Relax your shoulders, relax your jaws, and relax your forehead. अपने shoulders को, jaws को
अपने फोrehead को रिलैक्स करें. नाउ जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स. अपने ध्यान को अपने विचारों पर लेके जाएं. एंड जस्ट सी व्हाट इज योर नेक्स्ट थॉट. व्हाट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट थॉट. बस ऑब्जर्व करें कि आपका अगला विचार क्या है. No need to control, just notice. And now imagine all that noise in your mind is slowly settling down like water becoming still. जैसे एक शांत तालाब में पानी होता है, बिल्कुल वैसे अपने माइंड से सारी नॉइज को शांत होने दें. With every breath, your mind becomes clear, more clear. अगर कोई विचार आए तो उसको आने दें और जाने दें. And you just focus on what will be your next thought. और देखें कैसे आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है. How it become focused and clear. And now once again focus on your breath. अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा हिलाएं. Wiggle your fingers and gently bring your focus back to this session. तो बहुत स्लोली अपनी आंखें खोलें और मुझे चैट में बताएं how was this experience. What did you feel? What did you observe inside your brain? Just let me know in the chat box. And guys, I would request all of you that try to keep your video on. जो लोग कर सकते हैं. It would really help me to deliver a powerful session. Nishan Singh says, very relaxed and calm. Yes, Nishan. It makes you relax and it makes you calmer. You already have that, focused state inside your mind. You just need to activate it. Calm and relaxed mind, release of tension and relaxation feeling. Wow. Very good. Nice. This is what most people are missing. This reset, this gentle mental reset is what we are missing. And now let's move forward with it. Okay. So before we go deeper, I want you to honestly look at your current situation, right? That why most people feel stuck. क्यों हम stuck feel करते हैं? Why do we stuck in our life, right? Because you don't lack potential, but still something feels off, isn't it? ऐसा नहीं है कि हमें पोटेंशियल की कमी है. ऐसा नहीं है कि हमें टैलेंट नहीं है, right? But the reason is, you know,
You know what to do, but you don't do it consistently. हमको पता है क्या करना है, लेकिन हम उसको कंसिस्टेंटली ऑन अ डे टू डे बेसिस फॉलो नहीं करते, राइट? You always start strong, but eventually you lose momentum. Even simple decisions को भी हम overthink करते हैं, and again we keep replaying them in our head, and जिसकी वजह से eventually we feel more distracted and unfocused, right? And slowly you start doubting yourself. So tell me, if this feels relatable, कितनी बार ऐसा होता है कि ना हम रूटीन बनाते हैं कि यार एक्सरसाइज करेंगे, राइट? एंड स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन मोमेंटम में आते हैं, एंड देन इवेंचुअली वी लूज दैट मोमेंटम, और वापस से अपने उसी डिसीजन पर पहुंच जाते हैं जब हम उस एक्सरसाइज को डीप्रायोटाइज करते हैं, राइट? कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं लेट अस चेंज आवर जॉब, लेट अस डू समथिंग एल्स, लेकिन नया सीवी बनता ही नहीं। आज नहीं, कल बनाएंगे, कल नहीं, परसों बनाएंगे। कई बार काम भी करते हैं, एक दो रिजेक्शन आते हैं तो अप्लाई करना भी छोड़ देते हैं, राइट? सो आई वांटेड टू नो, if this feels relatable to you, just type it in the chat box if this feels relatable. Yes, good, very good. I understand, and slowly, yes, Mukul, overthinking is also a part of it. We overthink a decision. And today we are going to understand that ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। और पता है, the main problem is that बहुत सारे लोग ये सोचते हैं that I need more discipline for it, right? That we are not disciplined enough. We need to be more disciplined. Only then we will be able to achieve the goal that we are chasing, right? लेकिन इवेंचुअली ना, खाली डिसिप्लिन से नहीं होता है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि रियल प्रॉब्लम डिसिप्लिन है ही नहीं। रियल प्रॉब्लम इज नॉट लेजीनेस, इट इज नॉट लैक ऑफ मोटिवेशन। हमने देखा है जब हम चीजें कर रहे होते हैं, फ्लो में होते हैं, मोमेंटम में होते हैं, तब हम एक दिन के अंदर में चार चार दिन का काम निपटा देते हैं, राइट? सो इट मीन्स दैट यू आर नॉट लेजी, एंड इट ऑल्सो नॉट मीन दैट यू लैक मोटिवेशन, बिकॉज यू नो यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए भाई, राइट? प्रॉब्लम इज अ लैक ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर। हमारे थॉट्स बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, हमारे इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, एंड इवेंचुअली योर फोकस ब्रेक्स, राइट? एक साथ बैठ के हम बहुत सारे डायरेक्शंस में सोचते हैं, और इस एआई एज में, इस सोशल मीडिया एज में भी प्रॉब्लम और एलिवेट हो जाती है, बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इसकी वजह से हमारे थॉट्स स्कैटर्ड रहते हैं, इमोशन फ्लक्चुएट करते हैं, एंड इसका रिजल्ट क्या आता है? इट रिजल्ट्स इन इनकंसिस्टेंट एक्शन, राइट? बट अगर ये डिसिप्लिन नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम जो है डिसिप्लिन नहीं है, देन व्हाट इज एक्चुअली गोइंग रॉन्ग विद यू? तो गलत चल क्या रहा है, ये पता तो चले। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या चल रहा है हमारे साथ गलत में, जिसकी वजह से अगर डिसिप्लिन की इशू नहीं है तो क्या इशू है, बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव इन अवर लाइफ? एनीबॉडी? लेट मी शो यू समथिंग वेरी सिंपल है, ओके? एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो हमारा माइंड फॉलो करता है, एंड दैट फ्रेमवर्क इज, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फियर, then there is an identity crisis which is being developed because of the fear, and then it disrupts our focus, and eventually we lose the performance that we are having. चलिए, so let me simplify how your mind actually works. आखिर माइंड काम कैसे करता है, इसको तो सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम वन प्लेस, एंड दैट प्लेस यू ऑल, राइट, इज द फियर। किस चीज का फियर? फियर ऑफ फेलियर। नहीं हुआ तो क्या होगा, पीपल विल जज मी, फियर ऑफ जजमेंट, एंड फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, राइट? शायद हम इतने अच्छे नहीं है, अगर
मैंने कुछ एक्शन लिया एंड वो एक्शन कामयाब नहीं हुआ, आई इन्वेस्ट सम मनी ऑन माय बिजनेस एंड दैट डजंट वर्क, देन पीपल विल जज मी, आई विल सफर अ फेलियर, एंड देन शायद मैं उतना काबिल ही नहीं, राइट? सो इस टाइप की फियर हमारे हर एक डिसीजन से पहले जनरेट होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर यू स्टार्ट हेजिटेटिंग, यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग, राइट? इस फियर से जनरेट होता है एक आइडेंटिटी क्राइसिस, बिकॉज व्हेन दिस कीप्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन यू स्टार्ट फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। कैसी आइडेंटिटी बनाते हैं फिर हम? बनाते हैं एक आइडेंटिटी व्हिच सेज आई एम नॉट कंसिस्टेंट, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, राइट? शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, इसकी वजह से चीजें नहीं हो पा रही हैं, मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और धीरे धीरे जब हम वापस से इन फियर्स को अपने माइंड में प्ले करते रहते हैं, दिस आइडेंटिटी, ये जो बिलीव्स हैं, ये हमारे एक इंटरनल बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, राइट? एंड व्हेन योर आइडेंटिटी इज वीक, योर फोकस बिकम्स अनस्टेबल, बिकॉज आइडेंटिटी हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद फोकस। आप काम करने तो बैठते हो, राइट, बट योर माइंड कीप्स वेंडरिंग, वो भटक रहा है, जगह जगह पर भटक रहा है। उसको ये भी देखना है कि मैंने सुबह क्या खाया था, उसको ये भी देखना है मैं शाम को क्या खाऊंगा। वो बहुत सारी लेस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पर अपने आप को फोकस कर रहा है, और जो मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिस पर काम करना चाहिए, वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी क्रिएट करी है जो कहती है कि आई एम नॉट कंसिस्टेंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपके मन में एक डर है जो कहता है कि अगर मैं एक्शन लूंगा सो आई विल फेस फेलियर्स, राइट? एंड इवेंचुअली इसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है, बिकॉज व्हेन योर फोकस इज ब्रोकन योर परफॉर्मेंस ड्रॉप्स। बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप आपकी परफॉर्मेंस में आता है जब आपका फोकस ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप काम को डिले करने लगते हैं, यू स्टार्ट डिलेइंग द वर्क, यू डोंट कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, एंड इवेंचुअली यू डोंट गेट रिजल्ट्स। बिजनेस स्टार्ट करना है, चार चीजें एक साथ करनी है, राइट? बिकॉज ऑफ दैट फियर वो आइडेंटिटी खराब हुआ, वहां से वो फोकस टूटा, एंड देन इवेंचुअली क्या हुआ, हमने एक्शन लेने कम कर दिए। तो जब एक्शन कम हो गए तो रिजल्ट कैसे आएगा, राइट? एंड जब ये होता है एंड देन व्हाट हैपेंस, इसके बाद क्या होता है यू अगेन फील लाइक अ फेलियर, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइकिल। आपको फियर आया, आपने आइडेंटिटी बनाया, आपका फोकस टूटा, परफॉर्मेंस में लैग आया, इस परफॉर्मेंस के लैग ने अगली बार के फियर को और स्ट्रॉन्ग किया। सो अब एक स्ट्रॉन्ग फियर आया और अब एक वीकर आइडेंटिटी आया, इसकी वजह से फोकस और खराब हो गया और परफॉर्मेंस और डिप हो गया, राइट? फियर बढ़ते जाता है और ये साइकिल रिपीट होते जाती है, ठीक है? सो द प्रॉब्लम इज नॉट योर एफर्ट, द प्रॉब्लम इज द साइकिल दैट यू आर स्टक इन, राइट? फियर आइडेंटिटी को अफेक्ट करता है, आइडेंटिटी फोकस को अफेक्ट करती है, एंड फोकस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। मेक सेंस गाइस? चलिए एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेट अस से यू वांट टू स्टडी, लेट्स से यू वांट टू वर्क, ठीक है? एंड यू सिट डाउन, काम करने के लिए बैठ जाते हैं, बट इन योर माइंड देयर इज अ कांस्टेंट थिंकिंग गोइंग अराउंड, यार व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो गया तो, यार ये काम नहीं करेगा तो, व्हाट इफ आई कांट डू दिस। इवेंचुअली हम उस चीज को डिले करते हैं, राइट? जब हम उसको डिले करते हैं तो हम उससे कहते हैं सी आई एम नॉट कंसिस्टेंट, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। और अब नेक्स्ट टाइम यू ऑलरेडी बिलीव दैट यू आर नॉट कंसिस्टेंट, आप मान चुके हैं पहले ही दैट आप कंसिस्टेंट नहीं है, सो आप ठीक से ट्राई ही नहीं करते, यू डोंट इवन ट्राई प्रॉपर्ली, राइट? और ये साइकिल चलता जाता है, ऐसे ही चलता जाता है, एंड अनलेस यू ब्रेक दिस साइकिल नो अमाउंट ऑफ मोटिवेशन विल हेल्प यू। जब तक आप इस साइकिल को नहीं तोड़ेंगे तब तक कोई भी मोटिवेशन, कैसा भी मोटिवेशन आपकी मदद नहीं कर सकता। मेक सेंस? सो व्हाई डू यू कीप स्टार्टिंग अगेन? नंबर वन, देयर इज नो इमोशनल कंट्रोल दैट यू हैव। हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करते हैं,
हम ये देखते हैं कि अभी मेरे को कैसा लग रहा है, हाउ आई फीलिंग राइट नाउ, और उसके हिसाब से भी ट्राई टू एक्ट। बाहर से कोई छोटी सी बात हो जाती है, तो उस बात की हमारे अंदर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल के जाती है, बिकॉज वी आर नॉट मैनेजिंग अवर इमोशंस प्रॉपर, एंड देयर इज नो सिस्टम which will tell you that how I can focus better. And the most important thing is there is no weekly reset. हम बस चले जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली उन्हीं पैटर्न्स पर वापस वापस चले जा रहे हैं. Just keep moving and moving and moving on the same patterns. We are not sitting with ourselves. We are not resetting ourselves. और इवेंचुअली हमको बार बार रीस्टार्ट करना, राइट. यहाँ पे सवाल आता है दैट व्हाट यू एक्चुअली नीड. क्या चाहिए हमको, राइट. हमको चाहिए एक स्ट्रक्चर जिससे हम अपने फोकस को ट्रेन कर सकें, बिकॉज फोकस इज सिमिलर टू एनी अदर मसल दैट यू हैव. जैसे आप जिम जाते हो और जिम जाकर के आप अपनी बॉडी में मसल्स बिल्ड करते हो, राइट. सिमिलरली फोकस भी एक मसल है जिसको आप ट्रेन करते हो थ्रू अ स्ट्रक्चर यू ट्रेन, राइट. यू नीड अ सिस्टम टू रीसेट योर माइंड. एक रेगुलर बेसिस पे, एक वीकली बेसिस पे एक सिस्टम होना चाहिए जिससे आप अपने माइंड को रीसेट कर सको, राइट. यू विल रिमूव ऑल द बैगेजेस दैट यू आर कैरिंग फ्रॉम द पास्ट वीक, एंड यू विल गो इनटू द नेक्स्ट वीक विद अ क्लियर mind so that you can perform at your fullest, right. And more importantly, you require a space for accountability, a space where you are accountable for your actions and somebody is with you. आज के टाइम में हमने देखा है, पहले people used to live in there are bigger groups, especially after कोविड के बाद से सोशल इंटरेक्शंस बहुत कम हो जाता है, राइट. हम अपने कलीग से मिलते हैं बट स्टिल वी आर नॉट स्पेंडिंग दैट मच टाइम विद देम. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम एज वेल. सो इवेंचुअली क्या होता है कि वो जो सोशल कनेक्शन है, एक अकाउंटेबिलिटी स्पेस जो है वो खत्म हो जाता है. So we need to create that fabric. We need to provide a space for accountability. And most importantly, we need a method to rewire our thinking. हमारी थिंकिंग को रिवायर करना जरूरी है. कुछ भी हो जो आज तुम सोच रहे हो, अगर इसी तरीके से सोचते रहोगे, so basically if you are keep doing the same thing, you will be keep no you will keep getting the same result. Okay, if you keep doing the same thing, you will keep getting the same result. Some people are still joining. So, Shrutika, welcome. You are too late, right? Okay. So, हमने जाना हमारे क्या चाहिए ताकि इस साइकिल को हम तोड़ पाए, इस साइकिल को हम पैटर्न बनने से रोक पाए. ये जो पुराने पैटर्न बने हैं, इन पुराने पैटर्न्स को नए पैटर्न से रिप्लेस कर पाए, राइट. बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक बार हो रहा है, ये बार बार हो रहा है. सो अगर ये साइकिल है तो जितना हार्ड आप इसको फिक्स करने का ट्राई करोगे, राइट, उतना ही मुश्किल होता है आपके लिए साइकिल को तोड़ना. Because every time you require a higher level of effort, and every time you will have a weaker identity and higher fears. So eventually क्या होगा, हर बार जितनी बार आप ट्राई करते हो फोकस और वीक हो जाता है, परफॉर्मेंस ओवर टेक हो जाती है. सो आपको चाहिए एक सिस्टम. यू नीड अ सिस्टम विच कैन हेल्प यू चेंज योर पैटर्न. ठीक है, तो चलिए अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे इसको एक्सपीरियंस करने के लिए. जैसे हमने स्टार्टिंग में अपने आप को रीसेट करने के लिए एक मेडिटेशन किया था, now we are going to do an NLP exercise, right? This exercise is specifically to provide you that focus which you want. ठीक है, तो चलिए, तो हम यहीं स्टॉप करते हैं एंड let me help you with the music. Let me know when you can hear the music. Good. चलिए, so now I want everybody
सिट सिंपली, कंधे सीधे करके बैठेंगे, कंधे सीधे, कमर सीधी और गर्दन सीधी। अपने हाथों को जेंटली अपने गोदी में रखें या फिर अपनी थाइस पर रखें। यू कैन सिट ऑन द चेयर एंड यू कैन सिट इफ यू आर सिटिंग ऑन अ बेड और एनी अदर सरफेस। अपनी लेग्स को फोल्ड कर लें अगर आप कर सकते हैं तो। ओके, एंड नाउ मेक श्योर योर बॉडी इज रिलैक्स्ड एंड जेंटली क्लोज योर आईज। Take a slow, deep breath in and exhale slowly. Again, take a deep breath in and slowly let it go. And with every breath, allow your body to relax. अपने कंधों को रिलैक्स कर लें. रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर जॉज. अपने चेहरे की मसल्स को रिलैक्स कर दें. लेट देम फॉल डाउन, जैसे मेल्ट हो रही हो. अपनी आंखों को रिलैक्स कर लें. एंड नाउ जस्ट रिलैक्स योर फोरहेड एंड जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू बी हियर. अपने ध्यान को मेरी आवाज पे रखें एंड इस प्रोसेस के साथ में जुड़े रहें. अगर इस बीच में कोई विचार आए, सो जैसे ही आप उस विचार से वापस आए, अगेन focus on my voice and stay with the process. And now bring your awareness to your breath. And observe. With every inhale, you feel calmer. हर एक इनहेल के साथ आप और ज्यादा काम होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं. And with every exhale, you releases tension. Now imagine you are standing in a quiet, beautiful place. अपने आप को एक शांत और खूबसूरत प्लेस पर खड़ा हुआ देखें. A place where you feel completely safe. Nothing to prove, nothing to worry about. Just calm and still. And now, very gently bring your attention to your thoughts. अपनी attention को अपने विचारों पर लाएं. All the overthinking, all the doubts, and all the pressure. Imagine करेंगे एक बड़ा सा क्लाउड है, एक बड़ा सा डार्क क्लाउड है, और इस बड़े से डार्क क्लाउड के अंदर में just put all your overthinking, all the doubts that you carry, and all the pressure that you have on your shoulders. And slowly, these clouds are passing. ये क्लाउड धीरे धीरे पास हो रहा है. You don't hold them. You just let them go.
देखेंगे धीरे धीरे ये क्लाउड आपसे दूर जा रहा है, इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, एंड विद एवरी ब्रेथ you feel lighter. This cloud is going away from you, becoming smaller and smaller, and just vanishing in this beautiful sky. Imagine करेंगे ये काला बादल, ये टेंशन का, प्रेशर का, ओवर थिंकिंग का काले बादल छोटे होते जा रहे हैं, and they are going away from you, and just they are dissolving into the sky. Very good. Now, in this calm state, I want you to imagine a version of yourself. अपना एक वर्जन इमेजिन करें, एक वर्जन जो कॉन्फिडेंट है, वर्जन who is confident, a version who is focused, and a version who takes action. तो ध्यान से देखें इसको, देखें इसके चेहरे पर ग्लो है, शाइन है, चमक है. And this version is wearing very beautiful clothes. बड़े सुंदर कपड़े इस वर्जन ने पहन रखे हैं. Just look at those clothes. Look at this version of yours जो confident है, focused है, who is fit, healthy, dynamic and energetic. इस वर्जन को बिल्कुल क्लियरली देखें. देखें हाउ डू यू स्टैंड, ये कैसे खड़ा होता है. देखें ये कैसे बोलता है, हाउ डू यू स्पीक, एंड सी हाउ डू यू फील. एंड नाउ वेरी स्लोली स्टेप इनटू दैट वर्जन. इस वर्जन के अंदर स्टेप लेते हुए just observe, feel what this version is feeling. Feel that calmness, feel that mental clarity that they have, feel that confidence inside you. And now notice how your body feels now. ये वर्जन ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करता है. दिस वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट इनसाइड यू. यू आर नॉट क्रिएटिंग इट. आप इसको सिर्फ याद कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं. You are just remembering it. And now, gently place your hand on your chest. अपने एक हाथ को अपने चेस्ट पे रखें और अपने माइंड में कहें, say it in your mind, I am becoming more focused. I am becoming more focused. I trust myself.
I trust myself. I take action. अपने माइंड में एक बार फिर से रिपीट करें। I am becoming more focused. I trust myself. I take action. And as you say this, let this feeling go deeper. इस फीलिंग को और डीप जाने दें। This is your natural state. And now imagine, अपने ध्यान को मेरी आवाज पे रखते हुए अगर बीच में कहीं चले गए हैं तो मेरी आवाज के साथ वापस जुड़े। And just imagine tomorrow you sit to work. कल के दिन इमेजिन करें और देखें अब आप काम करने बैठे हैं। And this time you feel a little more clear. थोड़ा सा ज्यादा क्लियर महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड महसूस कर रहे हैं। And you take action. Small but consistent. And that starts changing everything. And now इस वर्जन को अपने अंदर रखते हुए अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को अपनी सांसों पर वापस लेके आए। Bring your attention back to your breathing. And again, observe this beautiful process of breathing. Feel the surface that you are sitting on. जिस सरफेस पर आप बैठे हैं उस सरफेस को एक बार फील करें। And whenever you are ready, slowly open your eyes. And just notice how how you feel right now. Even a small shift matters. And if you can build this consistently, right? What changes in your life? मुझे एक बार चैट में बताएं। अगर आप इसको इस फोकस में कंसिस्टेंटली रह पाते हैं तो जो फीलिंग में आप अभी हैं उसमें रह पाते हैं। सो व्हाट चेंजेस इन इट? Hitesh says confident. Nishant says clear and peaceful. Mukul says blissful and able to focus. Very good. And what about other sides? Be active in the chat. Work more effectively. Absolutely, Paul. Very nice. तो इस छोटे से शिफ्ट के बाद एक बार फिर से वापस आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने इस मेडिटेशन के दौरान भी ज्वाइन किया था। सो यू गाइस आर मोर देन लेट, मोर लेट देन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट? चलिए, आई होप कि हम लोग कैचअप कर पाएंगे। ठीक है, ओके देन। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लिया और अब इस एक्सपीरियंस के साथ में हमको ये समझना है, वेयर यू आर राइट नाउ एंड वेयर यू कैन बी। अभी तुम कहाँ हो, कहाँ तक पहुंच सकते हो।
उसके बीच में लड़ाई है. Let us understand this fight, right? So right now where you are somewhere stuck in overthinking, starting but not finishing, easily distracted. एक साथ चार प्लान्स हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड इवेंचुअली किसी को भी फॉलो थ्रू नहीं करता है. यू नो कंप्लीट अ सिंगल वन. एंड हर कुछ दिनों बाद हमारी ये फीलिंग जो है, द वे दैट वी आर गोइंग, ये चेंज होता रहता है. हमारे जो थॉट प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग, दे kept on changing and we feel distracted easily, and then we start doubting, right? then you guys अपने आप को डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं. फिर से वही आइडेंटिटी ट्रैप में फंसते हैं जब कहते हैं हम कंसिस्टेंट नहीं है, वी आर नॉट कंसिस्टेंट, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट. फिर से वही फोकस में टिप आता है एंड देन इवेंचुअली वी डोंट टेक एक्शन. जब एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे, राइट? अभी हम यहाँ पर हैं, हमको जाना कहाँ है, वेयर यू कैन बी, व्हाट इज द फ्यूचर. सो यू कैन बी इन अ क्लियर एंड फोकस्ड स्टेट ऑफ माइंड. You can take action consistently. You will be mentally calm and confident, and eventually you will be in control of your time, right? ऐसा नहीं होगा फिर कि अभी बैठे लेट्स से एक प्रेजेंटेशन बनाने, साइड में एक व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ने हमको भटकाया, वहां से कब हम इंस्टाग्राम गए, और वहां से कब देन अगेन द रिगमारोल ऑफ रील्स, वापस आते आते 1.5 घंटा लग गया. एंड देन वी अगेन क्रिटिसाइजिंग अवरसेल्फ, आई एम नॉट एबल टू फोकस, आई एम नॉट कंसिस्टेंट, एंड देन वी डोंट टेक एक्शन एंड इवेंचुअली वहीं रह गए. बट we can be at a place where we are clear and focused, where we are taking actions consistently, we are mentally calm and confident, right? And eventually in control of our time, right? So अब यहाँ पे ना दो सवाल खड़े होते हैं. पहला सवाल कहता है, if nothing changes, where you will be in 3 months? अगले 3 महीने में तुम कहाँ होगे अगर कुछ नहीं बदलता है? और you build that focus and confidence inside you, then what will change, right? So let me introduce you a titanium focus inner circle. आप में से बहुत सारे लोग इवेंचुअली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम अभी मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, वी वर्क टुगेदर बिफोर, राइट? एंड आई नो योर इश्यूज, आई नो व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज दैट यू आर गोइंग थ्रू, राइट? एंड आई नो what is required to help you out in this process. And eventually, I am introducing this titanium focus inner circle. So it's going to be a weekly high performance growth. राइट कुछ ऐसा ही है जैसे ना हम हर महीना हर हफ्ता जिम जाते हैं, अपने फिजिकल एक्सरसाइज के लिए डेली एक्शन लेते हैं, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या एक्शन लेते हैं? व्हाट एक्शन आर वी टेकिंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस फॉर अवर मेंटल पीस, फॉर अवर मेंटल हेल्थ? सो अगर देखा जाए, सो दिस इज समथिंग अ स्पिरिचुअल जिम, यू कैन से. आई डिस्क्राइब इट टू पीपल एज अ स्पिरिचुअल जिम, राइट? जहां पर हर हफ्ते एवरी संडे नाइट एट 8 p.m. अगले हफ्ते की शुरुआत से पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक, वी मीट हियर, वी रिलैक्स अवर सेल्फ, वी रीसेट अवर सेल्फ, राइट? एक 90 डे के स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करते हैं. एवरी वीक संडे को 8 इसके अंदर में हम एनएलपी एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करेंगे और एक प्रैक्टिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे. एक प्रैक्टिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि हम अपनी अटेंशन स्पैन को बढ़ा पाए और उसको एक जगह पे रख पाए. यू नो एज से इनिशियली देयर इज सेइंग कि गोल्ड फिश का जो अटेंशन स्पैन है वो 12 सेकंड का था, एंड वो सबसे कम माना जाता था इन द लास्ट 10-15 years, राइट? लेकिन अभी के जो सर्वे हैं उसके हिसाब से द अटेंशन स्पैन ऑफ अ ह्यूमन माइंड इज सिंपली 7 to 8 seconds, राइट? सो हम गोल्ड फिश से भी कम समय के लिए अटेंशन रख पा रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज पे, उससे ज्यादा फोकस हो पा रहे हैं. एंड द मेन रीजन ऑफ इट इज द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव. इस इंफॉर्मेशन बोmbardment की एज में, राइट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे फोकस्ड, और इसलिए हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन में रह जा रहे हैं, एक कंपैरिजन में रह जा रहे हैं. आइडिया इज टू मीट एवरी वीक, right? Reset ourselves, do a process, do NLP exercises, and follow a practical system to keep ourselves in our focused environment. We'll have some weekly challenges. हम एक WhatsApp accountability group बना के काम करेंगे. As you know, guys, the idea of this group is to keep minimum people, but only those people who are growth oriented.
who wants to grow. नो, जो लोग सिर्फ चीजें देखने आए हैं, जानना चाहते हैं, राइट, उनके लिए नहीं है. This is the group for people who wants to change themselves, who actually wants to grow in their life, जो exponentially grow करना चाहते हैं, right? So we will have that WhatsApp accountability group in which I want all of you to push each other to grow more in their life, develop more skills, right? And break that, हमारे लिमिटेशन का जो बैरियर हम अपने मेंटल फॉर्मेट में लगाते हैं, जो शायद हमारे पेरेंट्स से हमारे को मिलता है और हमारी स्कूलिंग से इनिशियल हमारी हमको मिलता है, उस लिमिटेशन के बैरियर को तोड़ना है. We need to go further up into it, right? So because of that, I've started this titanium focus inner circle only for people, right? Only for limited number of people who are growth oriented, who wants to grow in their life. We'll meet weekly at 8 p.m. right? इसके साथ में हम एक 90 डे का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर चलेंगे. Initially, we'll start it as a 90-day transformation journey, and then we'll move it forward to the whole year process. ठीक है? Sound interesting? Good. चलिए. So इस 90-day transformation journey में हम पहला महीना जो है वो रीसेट में बिताएंगे, ताकि हम अपनी ओवरथिंकिंग पैटर्न्स को ब्रेक कर सकें, so that we can develop a emotional stability inside us. Right? वो जो खाने की क्रेविंग होती है ना, मीठा खाने की क्रेविंग रात को सोने से पहले, उसको हम कम कर सकें. कैसे काम करें उस पर, राइट? उस मेंटल क्लैरिटी को कैसे डेवलप करें? यू नो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट. कल मेरे को ये वाला कोर्स करना था, आज मेरे को ये वाला कोर्स करना है, कल मेरे को ये वाली जॉब अच्छी लग रही थी, आज ये वाली अच्छी लग रही है. मुझे चाहिए क्या? व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट? बिकॉज फोकस सिस्टम तभी ऑपरेट करता है जब मेरे मेंटल सिस्टम में ये क्लैरिटी है, यार मुझे ये चाहिए, राइट? फर्स्ट मंथ विल बी ऑन द रीसेट. देयर विल बी 4 सेशंस. यहाँ पर हम ओवर थिंकिंग को ब्रेक करेंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी पर काम करेंगे और एक मेंटल क्लैरिटी अपने अंदर डेवलप करेंगे. देन वी विल मूव टू द मंथ 2. द मंथ 2 इज अबाउट आइडेंटिटी. अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड करेंगे, अपनी एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज बनाएंगे, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे दैट आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू, और अपने सारे सेल्फ डाउट को रिमूव करेंगे, राइट? सो मंथ बी अबाउट identity, building confidence, strong self image, and removing self doubt. And then we'll move to month 3. That month 3 will be about performance. परफॉर्मेंस कैसे आएगा? परफॉर्मेंस आएगा जब विल हैव अ डीप फोकस सिस्टम. वो टिप्स, वो ट्रिक्स जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी है, और मैंने काम किया है मोर देन हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स, एंड आई हैव सीन दोस रिजल्ट्स इन माय लाइफ. एंड जो प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूँ ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ लोगों को ऑलरेडी अप्लाई किया गया है, एंड उन्होंने रिजल्ट्स देखे हैं. सो वी विल फॉलो दैट डीप फोकस सिस्टम, राइट? वी विल टेक कंसिस्टेंट एक्शन. वी विल लर्न कैसे मैं कंसिस्टेंट रहूं, कैसे मैं उस स्टेज पे ना आने दूं अपने आप को कि मैं एक्शन ले रहा हूं, रुक गया हूं, एंड देन अगेन आई एम रीस्टार्टिंग अगेन. आई वांट यू टेक कंसिस्टेंट एक्शन टुवर्ड. नया जॉब चाहिए तो कैसे मैं फॉलो थ्रू करूं, उस जॉब को पाऊं, बीच में ना रुकूं. देन वी विल वर्क ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एग्जीक्यूशन. हाउ डू आई इंक्रीज माय प्रोडक्टिविटी? कैसे मैं 3 घंटे काम करके 5 घंटे का आउटपुट निकाल सकता हूँ, 6 घंटे का आउटपुट निकाल सकता हूँ, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर इन अ फोकस्ड स्टेट ऑफ माइंड, राइट? So the idea is, this is for you. If you are struggling with consistency right now, you overthink a lot. You think about every situation. ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो वो हो जाएगा. Keep on thinking, keep on role playing that in your mind, but not able to sleep better, right? And if you want to improve your focus in your life, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कंसिस्टेंसी से, ओवर थिंकिंग से, या अपने फोकस को इंप्रूव करने के लिए, सो ये आपके लिए. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर सीरियस अबाउट देयर ग्रोथ. So अगर कोई भी है यहाँ पे who is not serious about their growth, so I will advise them not to join. ठीक है? And if you are someone who wants to grow but you don't have that system, you are struggling with those issues, you're struggling with consistency, overthinking, and focus, I want you to join this group and be with me. Right? So you see, if you can build this consistently, if you can do those things consistently in your life, a lot of things can change in your life.